یعنی وقف خفیف کی علامت لگائی، درمیان میں وقفہ یا نصف وقف کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اسی علامت کو ہم کہیں گے فجائیہ۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم رموز اوقاف پڑھیں گے۔ اردو سال دوم کے معروضی پیپر میں 5 MCQ رموز اوقاف میں سے آتے ہیں اور اس حوالے سے یہ بہت عام موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ میں ہوں اشفاق شاہین۔ آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور رموز اوقاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رموز کے کیا معنی ہیں، اوقاف کے کیا معنی ہیں اور رموز اوقاف کی تعریف کیا ہے۔ رموز لفظ رمز کی جمع ہے اور اس کے معنی اشارہ، علامت یا نشان کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے اور رک جانے کے ہیں۔ آئیے تعریف دیکھتے ہیں رموز اوقاف کی۔ تعریف یوں ہوگی کہ رموز اوقاف وہ اشارے یا علامتیں ہیں جو عبارت میں کسی جملے یا لفظ کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے سال دوم کے پیپر میں جو رموز اوقاف دیے گئے ہیں جن میں سے MCQs آتے ہیں وہ 10 ہیں۔ ویسے اردو میں کافی تعداد میں رموز اوقاف ہیں لیکن ہمارے سلیبس میں صرف 10 شامل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں کون کون سے ہیں؟ سکتہ یا وقف خفیف، وقفہ یا نصف وقف، رابطہ یا وقف لازم، تفصیلیہ، حتمہ یا وقف مطلق، استفہامیہ یا سوالیہ، ندائیہ یا فجائیہ، واوین، قوسین اور خط۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی تعریف، ان کی پہچان دیکھتے ہیں اور ان کا استعمال جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سکتہ، اسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ وقف خفیف پوچھا جاتا ہے، سکتہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کی علامت ہے یہ الٹا کامہ۔ آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ جہاں عبارت میں بہت کم ٹھہرنا ہو علامت استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اسے کوما کہتے ہیں۔ اشیاء کے ناموں کے درمیان عام طور پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مترادف الفاظ کے ساتھ بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ آئیے اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور ملتان پاکستان کے شہر ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ہم نے الٹا کامہ لگایا یعنی وقف خفیف کی علامت لگائی اور یہاں کراچی کے درمیان بھی ہم نے یہی علامت لگا دی۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ انور، اکرم، اسلم اور ریاض لاہور چلے گئے۔ یہ درمیان میں وقف خفیف کی علامت ہے، یہ درمیان میں وقف خفیف کی علامت ہے۔ آئیے اگلی علامت کی پہچان کرتے ہیں، وقفہ یا نصف وقف۔ اس کے بھی 2 نام ہیں اور اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ عبارت میں جہاں سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہو وقفہ یا نصف وقف کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت فقرات کے طویل فقرات کے حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک بڑا فقرہ ہے، اس میں جو ہے وہ ہم فل سٹاپ نہیں لگا سکتے، ہم اس میں یعنی کہ ختمہ نہیں لگا سکتے۔ تسلسل قائم رکھنے کے لیے ہمیں وہاں وقفہ یا نصف وقف کی علامت لگانا ہوگی۔ اسے ہم انگریزی میں سیمی کولن سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئیے سمجھنے کے لیے مثال دیکھتے ہیں اور پہلی مثال ہے بانگ درا، علامہ اقبال کی، دستے صبا فیض کی اور برگ نئے ناصر کاظمی کی کتاب ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کی اور اس کے درمیان میں وقفہ یا نصف وقف کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ بڑے فقرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اور مثال۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کے باپ سے
बात की, ये दरमियान में हमें यही अलामत लगाई वक्फा या निस्फ वक्फ की। इसकी माँ से भी कहा मगर वो बाज ना आया। ये दो अलामतें हमने लगाई। यहाँ बड़े फ़िक्रे को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करने के लिए वक्फा या निस्फ वक्फ की अलामत इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगली अलामत कौन सी है। अगली अलामत राब्ता या वक्फ लाजिम है। राब्ता या वक्फ लाजिम, दो डाट, दो नुक्ते ऊपर और नीचे, इस अलामत से ज़ाहिर की जाती है राब्ता को, और इसके लफ्ज़ी मन ताल्लुक़ रब्त ज़ब्त के हैं जो फ़रंगे आसफिया में लिखा हुआ है। गोया ये अलामत किसी शय के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। इसका इस्तेमाल किसी का कौल लिखने, मुहावरा तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राब्ता की अलामत मुकालमा निगारी में भी इस्तेमाल होती है, जहाँ हम एक किरदार लिखते हैं, उसके आगे हम दो डाट लगाते हैं ऊपर नीचे और आगे उसका मुकालमा लिखते हैं। इसे कॉलन से जो है ताबीर किया जाता है, इसे कॉलन कहा जाता है अंग्रेज़ी में। आइए देखते हैं इसकी मिसाल। कायदे आज़म ने फरमाया, और इसके दरमियान में हमने राब्ता या वक्फ लाज़िम की अलामत लगाई। एक और मिसाल देखते हैं, सर सैयद ने क्या खूब कहा, और उसके दरमियान में ये दोनों में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है अपनी मदद आप करें। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि राब्ता या वक्फ लाज़िम की अलामत कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। आइए चलते हैं आगे। तफसीलिया, जहाँ बात की तफसील बयान करना हो, हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये दो डाट लगाते हैं और उसके साथ आगे एक डैश लगा देते हैं, एक लाइन छोटी सी लगा देते हैं, बन जाती है ये तफसीलिया की अलामत। और इसकी तारीफ़ देखते हैं, जहाँ किसी बात की तफसील बयान करना हो, ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसे अंग्रेज़ी में कॉलन एंड डैश कहा जाता है। आइए तफसीलिया की मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है, खाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया दर्ज झैल हैं। इसके आगे हम ये तफसील बताएंगे तो तफसीलिया की अलामत बताएंगे। नीचे हम इसके जो है वो तमाम चीज़ें लिख देंगे कि इस खाने में फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। एक और मिसाल देखते हैं बात को समझने के लिए। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम, और उसके आगे भी हम ये हादसा में ज़ख्मी होने वालों के नाम। जब हम तफसील बयान करते हैं तो उसके आगे हम तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। आइए चलते हैं आगे। ख़त्मा वक्फ मुतलक, कौन नहीं जानता, जहाँ पे जुमला ख़त्म होता है वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। डैश कहते हैं उसे, फुल स्टॉप कहते हैं उसे, लेकिन इसका एक और नाम है और वो नाम है वक्फ मुतलक। ये भी हमने याद रखना है, हो सकता है इम्तिहान में यही आ जाए। आम तौर पे वो ऐसे ही पूछते हैं कि तो थोड़ा सा नामानूस हो। आइए तारीफ़ देखते हैं। एक दफ़ा इबारत में जहाँ कोई जुमला ख़त्म हो वहाँ ख़त्मा या वक्फ मुतलक की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसे अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। आइए मिसाल देखते हैं, ख़त्मा की मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1, मैं खाना खा चुका हूँ। जुमला ख़त्म हो गया और उसके आगे हम रोज़ाना जब इबारत लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा हम यही अलामत इस्तेमाल करते हैं। आइए और एक मिसाल देखते हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, ये ख़त्मा की अलामत लग। आगे चलते हैं। इस्तफ़हामिया, सवालिया भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा, सवालिया इस्तफ़हामिया भी कहलाता है। और बाज़ औक़ात इम्तिहान में वो ये नामानूस सा, तालिब इल्म के लिए नामानूस सा लफ्ज़ यह इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए इसकी तारीफ़ देखते हैं। भारत में जहाँ सवाल का उनसर पाया जाए, सवालिया, ये सवालिया लिखा हुआ है, सवालिया की अलामत इस्तेमाल होती है। इसे इस्तफ़हामिया भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। मिसाल देखते हैं जो कि हम जानते ही हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं, ये आगे सवालिया की अलामत लगा दी। जहाँ
सवाल का आंसर पाया जाए। और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। निदाइया, फुजाइया, इस्ताजाबिया, 3 नाम हैं इस एक अलामत के। एक लगा के नीचे उसके नुक्ता लगाया जाता है, डाट लगाया जाता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होती है, ये जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है, ये हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है। आइए देखते हैं तारीफ़ इसकी जो है वो क्या है। निदा आवाज़ को कहते हैं जब किसी को पुकारना हो, मुखातिब करना हो, तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसे अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अगर इसको दुख या खुशी जैसे जज्बात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसी अलामत को हम कहेंगे फुजाइया। अगर पुकारने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे इसे निदाइया ये। और अगर इसे हम जो है वो जज्बात के लिए कहेंगे तो फिर हम इसे फुजाइया कहेंगे। और इसके बाद यही अलामत जब ख्वाहिश या हैरत के लिए इस्तेमाल हो तो इस्ताजाबिया कहलाती है। ये इस्ताजाबिया हैरत के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल देखते हैं, बल्कि मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है पुकारने के लिए हाज़रीन इंसानों। असलम साहब, हम सालेहुल में लिखते आए हैं जनाब आली। दरख्वास्त में पुकारा जाता है, मुखातिब किया जाता है, हम कहते हैं प्रिंसिपल साहब। मिसाल नंबर 2 देखते हैं जज्बात के इस्तेमाल के लिए। हम कहते हैं उफ़ कितनी गर्मी है, वाह कितना खूबसूरत मंजर है। हैरत के लिए अरे ये क्या हुआ। आगे चलते हैं। वावैन, ये 2 कामें, इनके दरमियान में इबारत लिखते हैं। आइए तारीफ देखते हैं। जहां किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करना हो तो यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। जब हम अपनी तरफ से कुछ ना कहना चाहें, किसी की बात हम उसी के लफ्ज़ों में बग़ैर किसी तब्दीली के लिखना चाहें तो हम उसे वावैन में लिखेंगे, जिसे इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। मिसाल देखते हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, और ये हमने यहाँ पे भी और यहाँ भी हमने जो है इस फ़िक्रे को हमने 2 कामों में, हमने वावैन में बंद कर दिया, जिससे ये पता चला कि ये किसी और का कहा हुआ है। एक और मिसाल देखते हैं। उसने मुझे कहा कमरे से बाहर चले जाओ, ये भी और ये भी। वावैन के अंदर की आवाज़ जो है वो किसी की होती है। जब इबारत लिखी जाती है, जब हम मज़मून लिख रहे होते हैं, जब हम उसमें से कोई कोटेशन देनी होती है तो हम वहाँ उसे वावैन में लिखते हैं। चलिए देखते हैं कौसैन क्या होता है। ब्रैकेट, कौसैन कहाँ इस्तेमाल होती है कौसैन की अलामत। आइए देखते हैं जुमला मोतरज़ा क्या होता है। इसमें जुमला मोतरज़ा लिखा जाता है। जुमला मोतरज़ा क्या है कि इससे मुराद इबारत में जो पहले से बताई गई बात है उसकी वजाहत करते हैं। अंग्रेज़ी में इसे ब्रैकेट कहते हैं। बड़ा आसान सा हम जानते हैं। और एक मिसाल देखेंगे और उसके बाद हम इसकी तफसील देखेंगे। मिसाल क्या है। अकरम मेरे चचा का बेटा लाहौर चला गया। मेरे चचा का बेटा, इसे हमने लिखा ब्रैकेट में, जिसे हम उर्दू में कौसैन कहते हैं। जब हम कहेंगे किसी से कि अकरम लाहौर चला गया है तो यकीनन वो पूछेगा कि कौन अकरम। शहर में तो शायद दर्जनों अकरम है, कॉलेज में तो शायद 10-12 अकरम होंगे, तो कौन से अकरम की बात हो रही है। बात की वजाहत करने के लिए जुमला मोतरज़ा लिखेंगे, अज़ाफ़ी बात लिखेंगे कौसैन में, जिससे पता चलेगा कि बात असल में क्या कही जा रही है, कौन आदमी है। अकरम मेरे चचा का बेटा। एक और मिसाल देखते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर सियालकोट पैदा हुए। अगर सिर्फ लिखा जाए कि इकबाल सियालकोट पैदा हुए तो पता नहीं चलेगा, इकबाल तो बहुत सारे हैं। हम लिखेंगे हमारे कौमी शायर। कोई आदमी आके कहता है कि मोहम्मद हुसैन उमरा पर चले गए हैं, हम पूछेंगे कौन मोहम्मद हुसैन भाई, किसकी बात कर रहे हो। वो आदमी कहेगा मोहम्मद हुसैन कौसैन में हम लिखेंगे अलमारियों वाले, सेफ अलमारियां बनाने वाले, तब हमारा ज़हन जाएगा हाँ वो आदमी।
بات کی وضاحت کے لیے جو جملہ لکھا جاتا ہے وہ قوسین میں لکھا جاتا ہے. آگے دیکھیے، خط یا لکیر. خط یا لکیر، جہاں جملے میں، فقرے میں یا جملہ میں اضافی بات تحریر کرنا ہو، خط یا لکیر کی علامت استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھیے کم و بیش وہی طریقہ کار جو ہم واوین میں استعمال کرتے ہیں. جب کسی بات کی وضاحت مطلوب ہو تو اسے خطوط کے درمیان میں لکھتے ہیں. یہ علامت قوسین کے طرز پر ہی استعمال ہوتی ہے. اچھا، تو پھر دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے. آئیے میرے ساتھ. آچی محمد حسین، ابھی میں نے کہا یہ الماریوں والے عمرہ پر چلے گئے. یہ بات جو ہے یہ ہم نے لکھی وضاحت کے لیے. دونوں خطوط کے درمیان مثال دیکھتے ہیں ایک اور. اسلم، بھائی کون اسلم؟ ہمارا پرانا ہم جماعت اسلم. آج کل وکیل ہے تو اسلم کے بارے میں بتایا. ویسے کہتے ہیں ہم اسلم، آج کل وکیل ہے تو پوچھتا کوئی بھائی کون اسلم، کس اسلم کی بات کر رہے ہو، کون بن گیا وکیل؟ ہم کہیں گے جی ہمارا پرانا ہم جماعت پتہ چل جائے گا. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ رموز اوقاف جان گئے ہوں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے سالانہ امتحان میں 5 MCQ رموز اوقاف میں سے آتے ہیں، اور رموز اوقاف وہ علامتیں ہیں کہ جو ہم زیادہ تر جانتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ استعمال کی ہوئی ہیں عبارت میں. بس ان کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو دو ہیں، ہمیں وہ یاد رکھنا ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگلے کسی لیکچر تک کے لیے اشفاق شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.